Let us start to solve differential equation y double dash minus xy dash minus 1 plus 2x square into y equal to 0 whenever x0 equal to 0 and using this method, power series method. So how do we solve this differential equation using power series method? So I am giving you the brief only. First of all, we have given y double dash plus p of x into y dash plus q of x into y equal to 0, right? And one point, which is x0. What we do? First we check x0 is regular point or not. You can say it is an ordinary point also, or it is singular point. In singular point, we have two cases, irregular singular and regular singular. Right. So we have two different methods. If x0 is an ordinary point, then the solution is yx is equal to summation an into x minus x0 raised to n when n is equal to 0 to infinity. And when it is regular singular point, then the solution is yx equal to summation n equal to 0 to infinity an into x minus x0 raised to n, and additionally we multiply by x raised to r. So whenever we have given any differential equation and a point x0, in the first part we check the nature, whether it is an ordinary point or regular singular point. Suppose it is ordinary, then this will be the solution format. If it is regular singular, then this will be the solution. So in this example, first we check whether the point x0 equal to 0 is regular point or regular singular point for this differential equation, right? So let us start. We have given this differential equation. This is equation number 1, and we have given the point x0 equal to 0, right? तो पहले हमें क्या करना है? We compare equation 1. हम उसी हिसाब से डिस्कस करेंगे जिस हिसाब से हमें एग्जाम में लिखना है, with y double dash plus p of x into y dash plus q of x into y equal to 0, right? Therefore, what is our px? This differential equation we are comparing with this one, so px is this, right? What is px? Minus x. And what is qx? If you compare with this, qx is this. यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हम लिख रहे हैं प्लस क्यू एक्स इंटू वाई, यहाँ पे दिया है माइनस 1 प्लस 2x स्क्वायर इंटू वाई. सो क्यू एक्स इज विथ माइनस साइन 1 प्लस 2x स्क्वायर. अब हम कैसे चेक करेंगे x0 इक्वल टू 0 की सिंगुलरिटी? फर्स्ट हम ये चेक करेंगे लिमिट x टेंड्स टू x0 px, एंड देन limit x tends to x0 qx, right? What is x0? x0 equal to 0 is given, right? So this is limit x tends to 0 px is minus x. This is limit x tends to 0 qx क्या है हमारा? qx is minus 1 plus 2x square.
minus of 1 plus 2x square, right? So this will become, once you substitute this 0 to this x, it becomes 0. Likewise, when we substitute this 0 to this quantity, it becomes minus 1 plus 0, which is minus 1, right? So this limit is 0, this limit is minus 1. दोनों में से कोई भी लिमिट इन्फिनिटी नहीं हो रही है, सही है? उसका मतलब क्या हो रहा है? बोथ द लिमिट एग्जिस्ट, देयरफॉर लिमिट x tends to x 0 px and limit x tends to x 0 qx exist, and therefore x 0 equal to 0 is an ordinary point. Ordinary point. Once it is an ordinary point, we can fix the solution, right? Therefore yx is equal to summation n equal to 0 to infinity an into x minus x0 raised to n is a solution of equation 1, and therefore yx is equal to summation n equal to 0 to infinity an into x raised to n. क्लियर? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. दिस इज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. ये इक्वेशन दिया गया हुआ है, हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा पी एक्स एंड क्यू एक्स. फर्स्ट हम चेक करेंगे सिंगुलरिटी. सिंगुलरिटी चेक करना एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, सही है? तो ये हम चेक कर रहे हैं वेदर इट इज़ एन ऑर्डिनरी पॉइंट और नॉट. ऑर्डिनरी पॉइंट मिल रहा है तो हमारा सॉल्यूशन फॉर्मेट ये रहेगा. x0 इक्वल टू 0 दिया गया है जो हमने सब्सटीट्यूट किया, तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन फॉर्मेट, राइट? दिस इज कॉल्ड पार्ट 1 ऑफ द एक्सरसाइज. इन पार्ट 1 हम सिर्फ यही चेक करेंगे कि हमारा पॉइंट कौन सी सिंगुलरिटी में है, ऑर्डिनरी पॉइंट है या सिंगुलर पॉइंट है. सिंगुलर पॉइंट है तो इरेगुलर सिंगुलर है या रेगुलर सिंगुलर, सही है? उसके हिसाब से सिर्फ हम सॉल्यूशन का नेचर फिक्स करेंगे. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स व्हाट इज द सॉल्यूशन. सो पार्ट 1 इज ओवर. नाउ लेट अस स्टार्ट पार्ट 2. तो पार्ट 2 के लिए हम क्या करेंगे? दिस इज माई वाई एक्स. सो व्हाट इज वाई डैश? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस in the last example. This is equal to n is 1 to infinity. So now I am not writing everything. I am not explaining all the steps in detail. N equal to 2 to infinity and n minus 1 an x raised to n minus 2. This is clear, right? What is the derivative of x raised to n? N into x raised to n minus 1. Right. Now this n remain as it is. What is the derivative of x raised to n minus 1? X raised to n minus 1, n minus 1 into x raised to n minus 2. Right. This is 0. This will become 1 and this will become 2. You have to be careful about all these things in exam. जब भी आप एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हो एग्जामिनेशन में, यहाँ पे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए. नाउ सब्सटीट्यूट ऑल दीज 3 वैल्यूज टू इक्वेशन 1. सो व्हाट इज आवर इक्वेशन? लेट मी राइट द इक्वेशन. y double dash minus xy dash. This is our equation. Y double dash minus xy dash minus 1 plus
2x स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0, राइट। हमने क्या एज्यूम किया है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, राइट। तो y डैश और y डबल डैश ये तीनों वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, राइट। सो लेट अस सब्सटीट्यूट एवरीथिंग। तो हमें क्या मिल रहा है, y डबल डैश इज दिस समेशन n इक्वल टू 2 to infinity n minus 1 a n x raised to n minus 2 minus x, this x. Now y dash. What is y dash? Summation n equal to 1 to infinity n a n x raised to n minus 1. Now minus 1 plus 2x square as it is. So minus 1 plus 2x square into y. What is y? Summation n is 0 to infinity a n x raised to n equal to 0. अब हमारा एग्जाम्पल में जो भी इंपॉर्टेंट है वो ये रिलेशन है, यही रिलेशन पे हमें काम करना है। तो चलो इसको और मॉडिफाई करते हैं। समेशन n इक्वल टू 2 to infinity रिमेन्स एज इट इज एन n minus 1 a n x raised to n minus 2. दिस x इसको हम अंदर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, x into x raised to n minus 1 which will be x raised to 1 plus n minus 1 which is x raised to n, right. So this is minus n equal to 1 to infinity n a n x raised to n. यहाँ पे this minus sign minus 1 into this, right. So it will be minus summation n equal to 0 to infinity a n x raised to n. Now this minus plus 2, right, multiply by 2. So it is minus 2. अब क्या रहेगा, x square into x raised to n. So it is x square into x raised to n becomes x raised to n plus 2, right. So 0 to infinity a n x raised to n plus 2 equal to 0. This is important. Say equation number 2. Now what we do, यहां से आपको ध्यान रखना है, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x raised to r. x raised to r का कोफिशिएंट कैसे कंपेयर करते हैं, यही इंपॉर्टेंट है इस एग्जांपल में, सही है। बाकी तो सब आपने सिर्फ डेरिवेटिव किया है। और अगेन आई रिपीट, x रेज टू आर का कोफिशिएंट कैसे कंपेयर करना है, n minus 2 equal to r, right. So what is the value of n is r plus 2. तो जहां भी n रहेगा वहां हम r plus 2 लिखेंगे. So this will be, this is n, so I write r plus 2. This is n, so I write r plus 2 minus 1, right. So ultimately क्या मिलेगा, r plus 2 r plus 1, right. यहाँ भी n है तो हम क्या लिखेंगे, a r plus 2, a r plus 2, क्लियर। तो ये टर्म कैसे रहेगा कोफिशिएंट, फर्स्ट टर्म का r plus 2 r plus 1 into a r plus 2 माइनस, नाउ सेकंड टर्म हम क्या लिखेंगे, n की जगह r, फिर कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू r, तो जहां भी n दिखेगा हम लिखेंगे r, सही है। सो दिस विल बी माइनस r a r. नाउ दिस टर्म द सेम लॉजिक, सो दिस इज माइनस a r माइनस 2 टाइम्स, क्यों मैंने लिखा माइनस 2 टाइम्स, बिकॉज अब हम आ रहे हैं इस स्टेप पे, तो माइनस 2 मैंने लिख दिया। n प्लस 2 की जगह हम क्या लिखेंगे, कंपेयर कर रहे हैं x रेज टू r का, तो n प्लस 2 इक्वल टू r. सो व्हाट इज n,
n इज r माइनस टू, राइट। तो यहाँ पे n कहाँ पे आ रहा है, यहाँ सफिक्स में, सो इट विल बी a r माइनस टू, सही है, ये भी कांस्टेंट है, so ultimately it will be minus 2 ar minus 2 is the coefficient, so minus 2 ar minus 2, लास्ट क्या बचा, इक्वल टू 0, so equal to 0, so this is the coefficient of x raised to r। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार स्टूडेंट्स हर एक स्टेप में मल्टीप्लाई बाय एक्स रेस टू आर, मल्टीप्लाई बाय एक्स रेस टू आर, मल्टीप्लाई बाय एक्स रेस टू आर ऐसा लिखते हैं। हम जब भी कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं तब कहीं पर भी एक्स नहीं दिखेगा, तो आपको ये क्वांटिटी इस इक्वेशन विदाउट एक्स ही लिखना है, राइट। नाउ व्हाट इज द वैलिडेशन ऑफ दिस कोफिशिएंट, राइट। ओके चलो वो बाद में देखते हैं, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देयरफॉर r plus 2, r plus 1, ar plus 2, now I take ar common here with this minus sign, so it will be minus r plus 1 ar minus 2 times ar minus 2 equal to 0, right। So what is ar plus 2, एक्चुअली में क्या करना है, ये सब सफिक्सेस है, r plus 2, r माइनस 2, इसमें लार्जेस्ट सफिक्स कौन सी है, r plus 2, तो ये जो लार्जेस्ट सफिक्स है उसको हम इक्वेशन का सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये r plus 2, राइट। दिस विल बी गो टू द राइट हैंड साइड, सो विथ प्लस साइन r plus 1 ar plus 2 times ar minus 2 divide by r plus 1 r plus 2, right। This is the important relation, पर एक प्रॉब्लम है इसमें, कौन सी वैल्यू के लिए ये सही है, कौन सी r की वैल्यू के लिए, एक्स रेस टू आर का कोफिशिएंट मतलब व्हाट, जो भी हमारा सॉल्यूशन है उसमें एक्स रेस टू 0 है, एक्स रेस टू 1 है, एक्स रेस टू 2, एक्स रेस टू 3, राइट। तो ये r की वैल्यू हर एक के लिए सही है या नहीं, वो हम कैसे करेंगे, मिनिमम सफिक्स, ये हमारी मैक्सिमम सफिक्स थी, राइट। ये तीनों सफिक्स में r plus 2 इज मैक्सिमम, r minus 2 इज मिनिमम, तो मिनिमम सफिक्स r minus 2 है, उसको हम 0 से कंपेयर करेंगे तो r क्या मिलेगा, 2, राइट। मतलब कि r 2 3 4 5 ऑनवर्ड्स ये सही है, उससे छोटी वैल्यू के लिए सही नहीं है, क्यों नहीं है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। सो दिस इज ट्रू फॉर r ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, सो आई राइट एवरीवेयर r ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, राइट। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मिनिमम क्या है, ar माइनस 2, सपोज r इज इक्वल टू 1, तो क्या a क्या बनेगा, r इज इक्वल टू 1 देन a माइनस 1, ए माइनस 1 का तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो सॉल्यूशन का एजम्पशन है वो ये है, हम यहाँ से बात कर रहे हैं, तो हमारा एजम्पशन क्या है, व्हेन n इक्वल टू 0, a0 x रेस टू 0 प्लस a1 x रेस टू 1 प्लस a2 x रेस टू 2, सो मिनिमम 0 ही है, नेगेटिव नहीं है, 0 1 2 3 4 ऑनवर्ड्स हम बात कर रहे हैं, राइट। सो वेन एवर r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 0, तो ये हमें मिलेगा a माइनस 1 a माइनस 2, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट। उसका मीनिंग ये हो रहा है कि ये रिलेशन हमें सिर्फ इतने ही कोफिशिएंट्स दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स रेस टू 4, एक्स रेस टू 5, what about the coefficient of x रेस टू 0 and x रेस टू 1, ये हमें अलग से लेना है, सही है। सो लेट अस राइट, कंपेयर the coefficient of x raised to 0, राइट। अब x raised to 0 का कोफिशिएंट कैसे कंपेयर करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है।
यहां हमें इतने टर्म्स दिए 1 2 3 4, हर एक टर्म्स में x रेस टू 0 नहीं है। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहां पर x रेस टू 0 है। समझो यहाँ n इक्वल टू 2, सो दिस कंटेन्स x रेस टू 0, n इक्वल टू 1, सो दिस कंटेन्स x रेस टू 1। यहाँ पे x रेस टू 0 नहीं है। n इक्वल टू 0, सो हियर वी हैव x रेस टू 0। n इक्वल टू 0, तो ये x स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि ये टर्म x स्क्वायर x क्यूब x रेस टू 4 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये टर्म x रेस टू 0 x रेस टू 1 x स्क्वायर इस तरह से दे रहा है। ये टर्म x रेस टू 1 x रेस टू 2 x रेस टू 3 दे रहा है। दिस इज x रेस टू 0 x रेस टू 1 x रेस टू 2 दे रहा है। तो x रेस टू 0 का कोफिशिएंट हमें कहाँ से मिलेगा? एक यहाँ से और यहाँ से। तो ये दो इक्वेशन में हम n की मिनिमम वैल्यू लेंगे, राइट। सो कब मिलेगा? व्हेन n इक्वल टू 2 we get x raised to 0, right? So let us substitute n equal to 2. So this is 2, 2 minus 1, a2, right? अब इस टर्म में भी लिखेंगे हम n इक्वल टू 0, तब हमें मिलेगा माइनस a0 इक्वल टू 0. So what is a2? a2 is equal to a0 divided by 2. This is also important relation. Next, compare the coefficient of x raised to 1, right? x raised to 1 के लिए हमें क्या करना है? यहाँ पे x रेस टू 1, यहाँ से भी मिल रहा है x रेस टू 1, यहाँ से भी मिल रहा है x रेस टू 1, यहाँ से हमें मिलेगा x रेस टू 2, तो ये काम नहीं करेगा, सही है। तो x रेस टू 1 यहाँ पे कैसे मिलेगा? व्हेन n इज इक्वल टू 3, यहाँ पे व्हेन n इज इक्वल टू 1, यहाँ पे व्हेन n इज इक्वल टू 1। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है, हर एक टर्म में n की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। So let us substitute the values. When n is equal to 3, this will be 3 into 2, a3. Clear? So this is 3 into 2, a3. This will be 1 into a1, और यहाँ से मिलेगा minus a1, right? So minus 1 into a1 minus a1 equal to 0. So this is 6a3 equal to 2a1. So what is a3? 2 divided by 6 is 1 upon 3 a1. ओके, ये हमारा ऑलमोस्ट एग्जाम्पल का एंड है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, हम किस तरह से स्टार्ट करेंगे। दिस इज पार्ट 1, राइट। नाउ इन पार्ट 2 we find y dash, y double dash, right? We substitute all these three values to the given equation. So this is the substitution. हम उसको remodify करेंगे. Then this is compulsory. हम x raised to r से ही start करेंगे, फिर हम चेक करेंगे कौन सी वैल्यू के लिए। इसका मीनिंग ये हो रहा है, ultimately our purpose is to find out the coefficients of all the power of x's. पर ये रिलेशन हमें यहाँ से हेल्प कर रहा है, ये दो का कोफिशिएंट्स हमें नहीं मिल रहा है, तो दोनों का हम सेपरेटली काउंट करेंगे। बस यही है हमारा लास्ट स्टेप, ठीक है। तो ये तीन रिलेशंस हो गए, अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज y(x) is equal to summation n equal to 0 to infinity n x raised to n, where a2 is equal to a0 by 2,
a3 is equal to a1 by 3 and ar plus 2 is equal to r plus 1 ar plus 2 times ar minus 2 divide by r plus 1 r plus 2 when r greater than or equal to 2. This is the end of exercise. इससे आगे आपको कुछ भी नहीं करना है, पर एग्जाम में आपको ये डेफिनेटली चेक करना है कि आपके रिकर्जन्स रिलेशन जो भी मिल रहे हैं उसके हिसाब से हमें ये सभी कोफिशिएंट्स मिल जाने चाहिए. This is actually the purpose of the exercise. फिर भी अगर आपको कहीं पर समझ में नहीं आ रहा है तो कभी भी आप व्हाट्सएप करना. ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल है और यहाँ पे हम यही डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू राइट इन एग्जामिनेशन. तो आपको एग्जाम में यही मेथड फॉलो करनी है. फर्स्ट स्टेप इज दिस. आई रिपीट अगेन, दिस इज पार्ट 1. अगर ये 7 मार्क्स का एग्जाम्पल है तो इसका रहेगा 3 मार्क्स और ये यहाँ से जो आगे बढ़ रहे हैं इसके टोटल रहेंगे 4 मार्क्स. आपका रिकर्जन रिलेशन सही है, उसका मतलब कि आपको ऑलमोस्ट 6 मार्क्स मिल जाएंगे. जो लास्ट मार्क बचा है वो रहेगा इस सॉल्यूशन का, इसका रहेगा 1 मार्क.